You want to say something? Ministers. नहीं सर, Yes, calling. He wanted to say something. He told me. इसमें 2-3 ऑनरेबल मेंबर्स इसमें कि जो रिटायर होने वाले हैं वो बोलेंगे भी। मुझे लगता है कि 3 बजे तक अगर ये इशू जो लोग बोलना चाहते हैं ख़त्म हो जाए तो उसके बाद और इशू। No, I'll tell you. No, I have already 5. Now, please, I have already 6 names with me. So they will take 6 into 3. Your name is not here. Nahin diya gayi. Yeah. You are going to speak. No, see, then the retired members would like to speak. So 3 is not possible. I will try 3:30. Okay, 3:30. So that those who speak, those who ये तय हुआ था कि हर वीक में 1-2 हम लोग कॉलिंग अटेंशन लेंगे, 1 शार्ट ड्यूरेशन लेंगे। इस सप्ताह हुआ नहीं, जो 3:30 बजे पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो हम लोगों का जो शार्ट ड्यूरेशन है उसको ले लीजिए और बिल कल ले लीजिएगा। कल ले लेते हैं बिल ना कल आपका शार्ट ड्यूरेशन कल ले लेते हैं लंच के बाद। लंच के बाद नए चेयरमैन आ रहे हैं ना। Now the point is, जल्दी शुरू करा दो भाई, तीनों एक साथ। let us be सरकार ने practical. गिरफ्तार कर लिया है, हजारों विस्थापित परेशान हैं। मेधा पाटकर को किसी भी जुर्म में दूसरी बात, गिरफ्तार किया गया, हमें आपत्ति माननी सर। आज तक केंद्र सरकार ने उसका उत्तर नहीं दिया। 18,000 परिवार ज्यादा डूबने की कगार पर है और आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दिग्विजय जी बैठिए, very cooperate, okay. Now please don't derail it. Please don't derail it. Digvijay ji बैठिए. Please don't derail. I am only requesting. Don't derail. You sit down. Sit down. उसके बाद उठाओ। आप लोग बैठिए. I am only requesting. I am only requesting. See, those who make, no, please, those who make farewell speeches. Honorable Deputy Chairman, sir, I think we dispose of the agenda under discussion. And if at all they have to discuss something, it should be after that, not in between. No, that is correct. Yeah. That is all what I am saying. But I have to know about the time, because tomorrow, even though Minister said, see, I want to share with us, let us be practical. The chair has to look at the whole aspect of it. Tomorrow afternoon, because the new chairman is assuming office tomorrow morning, and as far as I know, after the felicitation and all that, he will give his reply, and after that, as far as I know, the House may not sit in the afternoon. So the only day available is today. Therefore, we have to manage the time. So I am requesting you, those who speak, take only 3 minutes each. That is felicitation. Reply thoda zyada ho sakta hai. And so that at least by 3:30 or 3:45 finished it, and we have to take the bill. Yeah, because yesterday itself we have agreed for taking a bill that is the replacement that that is what I am saying. अच्छा ठीक है, एक साथ ले सकते हैं. So राम गोपाल यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, Professor Ram Gopal Yadav. Company affairs can't be taken. No, it's okay. Only the ordinance. Okay, ordinance. Professor Ram Gopal Yadav ji. I am requesting everybody 3 minutes. धन्यवाद श्रीमान। आज कई माननीय सदस्य जिन्हें हम विदाई दे रहे हैं, जो अगले सदन में हम लोगों के बीच में नहीं देखेंगे, उनके बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन जो दोबारा चुन के आ गए हैं उनको मैं पहले बधाई देता हूं। अहमद पटेल साहब, इस्मत ईरानी, अरे छोड़ो, sit down. आप बैठिए को मैं No, don't disturb, sit down. आप बोलिए। क्यों मैं बधाई दे रहा हूँ। अरे चाबन की बैठिए। आप बोलिए। चाबन कुमार बैठिए, आप भी बैठिए। मैं आप बोलिए। सर, बंदूक प्लीज।
No, don't disturb. Mr. Naqvi, tell your member to take a seat. I am not allowing. No, that's not possible. Not allowed, sit down. No, no. I am not allowing. Why? You sit down, you sit down. उसने क्या जुर्म किया अगर विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ रही है? Why are you doing this? Why do you want to create problem? Why do you want to create problem? What is so acceptable? Sir, I've been raising this issue. The government is not responding. Okay. सर ये बहुत ही Nothing, you will go on record, sit down, accept what Ram Gopal ji says. ये बहुत ही दुखद बात है कि जब हम एक ऐसे मसले पर यहाँ बात कर रहे हैं अभी, तो बीच में इस तरह की बात उठाया जाना ये बिल्कुल गलत और सारी परंपराओं के खिलाफ। बिल्कुल सही। हम अपने मित्रों को, मेरे बगल में बैठे हुए हैं सीताराम येचूरी, हम लोग साथ बैठते रहे हैं। वो अगले सेशन में हमारी बगल वाली सीट खाली नहीं रहेगी, हमेशा याद रहेंगे। ये कोई मामूली पार्लियामेंटेरियन नहीं है, बात उन्होंने कह दी। मुझे याद है कॉमरेड सुरजीत के साथ मैं हवाना गया था, ग्लोबलाइजेशन पर एक कॉन्फ्रेंस थी। तो कॉमरेड ने हमसे कहा कि हमारी पार्टी में सबसे अच्छा लड़का है सीताराम येचूरी, आगे चलकर हमारी पार्टी को लीड करेगा। सीताराम येचूरी जी आ सकते थे, लेकिन इनके पार्टी के विधान की वजह से इनको यहाँ आने से रोक दिया गया। मैं इस सदन में आज उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप पार्टी के महासचिव हैं, आप अपनी पार्टी के संविधान में संशोधन करवाइए। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये सीपीआई थी, जब सीपीआई थी भूपेश गुप्ता जी जीवन भर जब तक जिंदा रहे मेंबर, यही सीपीआई थी, बदल गई। जब टूट गई तो सीपीआई और सीपीआईएम बन गई। तो जब 20-50 साल जब बहुत बड़ी पार्टी थी, तब संविधान वैसा हो सकता था कि दोबारा चुन के 2 बार से भी ज़्यादा, 2 टर्म से भी ज़्यादा कोई चुन के आ सकता है। तो सीताराम येचूरी जैसे व्यक्ति जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने हर चर्चा में कंट्रीब्यूट किया, और चाहे बिल हों चाहे रेजोल्यूशंस हों, सबकी क्वालिटी को बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को अगर दोबारा आने से पार्टी रोकती है विधान के, भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, तो आपकी पार्टी के संविधान में क्यों नहीं संशोधन हो सकता? ये पूरा सदन आपको मिस करेगा। मुझे अजीब लगेगा, अब पता नहीं यहाँ कौन बैठेंगे, डायरेक्ट बैठेंगे, डायरेक्ट दोबारा आ गए, बहुत बधाई इनको। तो सीताराम जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जिन बड़े लोगों का नाम लिया इन्होंने, अभी गुलाम नबी साहब ने, आने वाली पीढ़ियां उन नामों में इनके नाम को भी लेंगी, इनके नाम को भी। बंदोपाध्याय जी, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं हमेशा टाइम पे आ जाता था। 10:30 बजे यहाँ आने के लिए जो आता तो सबसे पहले दादा से मेरा प्रणाम होता था। मुझे सौभाग्य इस बात का होता है कि सबसे पहले दादा से प्रणाम करने का मौका मुझे ही मिलता था। यहीं से मैं गुजरता था, पहले उन्हें प्रणाम करता था, तब चेयरमैन साहब के चैम्बर में जाता था। इनका कैरियर बहुत ही शानदार रहा है। जिस कमेटी में रहे उसमें इनका योगदान बहुत अच्छा रहा है, और मेंबर्स का भी रहा है। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो दोबारा आ गए हैं वे और योगदान करेंगे, बहुत खुशी है, उनको बधाई मैं दे ही चुका हूं। स्मृति ईरानी जी से मैंने कहा था कि मिठाई खिलाओ, तो उन्होंने कहा था कि नरेश अग्रवाल से लीजिए, ये हमारे मायके के हैं, तो वो चली गई यहाँ से।
अहमद पटेल साहब ने सारे देश को मिठाई खिला दी। इनको बहुत बहुत बधाई। Okay. और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि येचूरी जी, आपको मैं हमेशा याद रखूँगा। और Okay. Thank you very much.